वेलकम टू लॉलीबॉली न्यूज़। क्या होगा भारत और हिंदुस्तान के बीच? क्या सच में पाकिस्तान ने किया है पहलगाम या सिर्फ मोदी का इल्ज़ाम है इलेक्शंस के लिए? क्या हो जाएगी पाकिस्तान भारत जंग? क्या हिंदुस्तान कर देगा पाकिस्तान पे हमला? किसका नाम सफाई हस्ती से मिट जाएगा? सारी डिटेल्स देखते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ वॉर, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ वॉर एंड टू द एंड ऑफ वॉर। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। Pursue them to the ends of the earth. Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. $25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त करके बाहर निकले। For the good of our nation, let's work together and let's truly make America great again. The fastest news breaks. Requested PM saying that look, you will have to speak to Putin and to Zelensky. The biggest newsmakers. The relationship with India is probably the most important bilateral relationship the US will have for the rest of this century. The capital delivered quite an election result today. Expert analysis. The million-dollar question today is how to stop this dance of death. Ground reports. I'm standing at the crossroad of the Kumbh Mela. Behind me are more than 100 entry ghats. Long-form interviews. Exclusionary politics is reflected in Manipur case as well. You don't bother because this is a small state. Deep dive into burning issues. It's often said DRC could be the richest country in the whole world. It's because of what sits underneath. Why exactly did the US topple the Sheikh Hasina government? HD videos. We don't just break news, we break it down.
The Indian Army has confirmed that it has launched a series of precision strikes on what they say are terrorist camps in Pakistan in response to the terrorist attack which took place on the 22nd of April in Kashmir. India pointed the finger of blame on Pakistan. Pakistan has denied that they had anything to do with it, and they say they have no terrorist camps in their country and that civilians have been targeted in this strike. Pakistan has now vowed to respond to this attack. This is an ongoing situation. It is escalating, and there are calls from the international community to de-escalate this because, of course, these are two nuclear-armed states now confronting each other. It is unclear how Pakistan will respond, but Pakistan says it will not stand by. बुलेटिन के आगाज में अहम तरीन खबर आपको देंगे। लाहौर के इलाके वॉल्टन में भारतीय ड्रोन मार गिराए जाने की इत्तलात है, ताहम अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की जा सकी। इलाके में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी और धमाके के बाद धुआं उठता देखा गया। वॉल्टन का इलाका है लाहौर में, जहां भारतीय ड्रोन मार गिराए जाने की इत्तलात हैं। नुमाइंदा जी न्यूज़ अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बहुत हसास मामला है, क्या खबरें हैं आपके पास इस हवाले से? बिल्कुल जी, हसास मामला, और हमारी पाक फौज को फिर एक कामयाबी हुई है। और जराये का ये कहना है कि ये 2 ड्रोन भारतीय बुज़दिल फौजियों ने 2 ड्रोन जो भिजवाए थे, उनको हमारी पाक फौज के जवानों ने उनको मार गिराया। और ये जो वाकया पेश है ये वॉल्टन है। वॉल्टन ये बिल्कुल शहरी इलाका है, शहरी आबादी है, यहाँ पर रिहायशी आबादी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अहमद फराज। इस हवाले से हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अहम खबर आ रही है लाहौर के इलाके वॉल्टन से, जहां भारतीय ड्रोन मार गिराए जाने की इत्तलात हैं, ताहम अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हुई। इलाकों में धमाके की आवाज़ें सुनाई दी हैं और धमाके के बाद धुआं उठता भी देखा गया है। ताहम याद रहे कि इस तरह के मामलात में हतमी तस्दीक का इंतज़ार जियो न्यूज़ को है और हम आपको आगाह करेंगे। अहम खबर शामिल करेंगे। लाहौर के इलाके वॉल्टन, बर्की रोड और डिफेंस में शदीद फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सायरन बजा दिया गया है, शहरी घरों से निकल आए हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं, लाहौर के इलाके वॉल्टन, बर्की रोड और डिफेंस में शदीद फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं और सायरन भी बजा दिया गया है वहां पर, जबकि शहरी घरों से बाहर निकल आए हैं। इससे पहले भी इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। सायरन बजाए गए, लोगों में खौफ व हिरास फैल गया, लोग घरों से बाहर निकल आए। और अब की जो ताज़ा तरीन खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि लाहौर के इलाके वॉल्टन, बर्की रोड और डिफेंस में शदीद फायरिंग का मुजाहरा किया जा रहा है। मनासिर भी आप देखते हैं, विजुअल्स देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर बराह रास्त। लाहौर का इलाका है वॉल्टन, बर्की रोड और डिफेंस, यहाँ पर शदीद फायरिंग की जा रही है। इसी पर बात करेंगे, नदीम हैदर हमारे साथ मौजूद है। नदीम, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुतालिक। बिल्कुल ये सूरत हाल है, वॉल्टन रोड का एरिया है, ये वाला जो DHA बेस तरीका जो एरिया में शदीद फायरिंग की आवाज़ सुनी जा रही है और बार बार वक्तन जो है छोटी जो है तो उनकी आवाज़ सुनाई दी जाती है। उसके बाद एकदम से जो एक भारी भरकम आवाज़ जो है वो उसमें एक जाती है। सिलसिला तकरीबन लगातार 1.5-2 घंटे से मुसलसल तौर पर जारी है। इस टाइम DHA का इतना भी एरिया है, यहाँ पर बड़ी शदीद आवाज़ें सुनी जा रही हैं। वॉल्टन के एरिया में आवाज़ें सुनी जा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा हैवी नॉइज है जो सुनने में आ रही है वक्तन, और ये नॉन स्टॉप जो है तकरीबन पिछले 3 घंटे से आ रही है। पहले हल्की सी जो है एक रैपिड फायर स्टार्ट होता है, रैपिड फायर बंद होने के साथ ही जो है थोड़े गैप के बाद एक जो हैवी जो है वो एक्सप्लोजन की जो आवाज़ है वो इस साइड से आती है। लेकिन अब देखने की क्या सूरत हाल है, अभी तो क्लियर कट यहाँ पर मामला नहीं बताया गया। बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या जो मुतल्लिका निजी सोसाइटी की सिक्योरिटी, उन्होंने भी घरों के अंदर रहने का रेडी है। अब मजीद देख रहे हैं क्या सूरत हाल बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, मजीद देख रहे हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। मुबीन हैदर आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम सदर ट्रंप की क़यादत और ख़त्ते में अमन के लिए उनके फ़ाल किरदार पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस नतीजे को हमने ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम के मफाद में कबूल किया। एक बयान में वज़ीर आज़म का कहना था कि अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा का भी जनूबी एशिया में अमन के लिए खदमात पर शुक्रिया अदा करते हैं। ये पेशरफ्त इन मसाइल के हल के लिए एक नए आगाज़ की अलामत है। इन मसाइल ने तवील अरसे से ख़त्ते को मुतासर किया, अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम की राह में किरदार अदा किया। मसाइल के मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तवील अरसे से ये मसाइल खित्ते को मुतासर करते रहे हैं, अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम की राह में रुकावट डालते रहे हैं। अब हम सदर ट्रंप की क़यादत और खित्ते में अमन के लिए उनके फ़ाल किरदार पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस नतीजे को हमने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के मफाद में कबूल किया। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा का बयान भी जनूबी एशिया में अमन के लिए खिदमात पर अहम है और हम इन खिदमात पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये पेशरफ्त इन मसाइल के हल के लिए एक नए आगाज़ की अलामत है। हम अपनी गुफ्तगू सीनियर सहाफ़ियों, तजज़ियकारों से जारी रखेंगे।